So, greetings in the name of music. This is Daniel Sohail और आज हमारे साथ हैं शहरी खटक भाई. एक मिनट मेरे रास्ते गलत हैं क्योंकि मिरर्ड होती है वीडियो. तो शहरी खटक भाई. तो कैसे हैं शहरी भाई आप? I'm good. I'm good. How about you? आई एम ऑल्सो गुड. बस यूनिवर्सिटी चल रही है और साथ थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक चल रहा है और पॉडकास्टिंग चल रही है. सो शहरी भाई, लास्ट टाइम Hmm. आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर बट लास्ट टाइम वी मेट इट वाज ऑन LMM 20 with Anan. Okay. Okay. And we were chilling It's been a before your while. show. Yeah, we were chilling before your show. And बस पिक्चर नहीं बस ले सके, बाकी सारा कुछ किया था. हाँ ठीक जी. है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रियली एन ऑनर कि आप आए इस पॉडकास्ट पे. और या इट फील्स वेरी गुड. आई हैव अचीव्ड समथिंग मॉम. Oh man. Hey man, thanks for having me, man. नो प्रॉब्लम, एनी टाइम ब्रो. तो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ टेल अस अबाउट योर सेल्फ के यू नो रिगार्डलेस यू एवरीबडी नोज यूर अ म्यूजिशियन, अ प्रोड्यूसर. वैसे मतलब आपके ओपिनियन में आप क्या हैं? लाइक इट्स वेरी वियर्ड क्वेश्चन बट यस. I'm a music guy. ठीक है. Anything related to music excites me. Uh, I mean, I'm very much into making music out of nothing. मुझे बड़ा मजा आता है. It excites me with the fact कि music ऐसी चीज है जो कि बस आप हवा में बना सकते हो. So it's like magic. एग्जैक्टली. तो क्या बस बात वही है. चीज it keeps me going. Yeah. बेहतरीन. तो एज एवरीबडी नोज कि यार आप इस सीज़न में कोक स्टूडियो में भी आए. मतलब पहले तो ऐलान जंग, इट वाज लाइक लिटरली एयर ड्रॉप हुआ है वो बॉम्ब. एंड आई वाज लाइक ओके यार, ये चीज़ आई नीड दैट ड्यूल गिटार सोलोज एंड ऑल इन माय पाकिस्तानी म्यूजिक. एंड यस, यू गेव मी दैट. और the cherry on top was you were in this season. Like you were in this. I think you were the senior audio engineer, right? I had multiple hats Yeah. for this season. There were a lot of things that I was doing in capacity. Like, yes, I was, part of the team, of the audio team, and I was a senior engineer there. Hmm. And, figuring out the routings and all the setup that goes on Hmm. in terms of recording. Uske alawa, I was in the think tank process where, all these collaborations were made when they were discussed, they were being brainstormed. It started off there first. Hmm. Um, I also arranged a lot of songs. I mean, specifically guitars in a lot of songs. Like I arranged guitars in Pasuri. I arranged the balalaika part in Kanayari. I Wow. did a little guitar part, some guitar parts in Mehram. Oh, So yeah, nice. there were multiple roles that I was playing, and silently behind the scene. You did guitars बाकी in अपना Ye गाना था Duniya as वो. well. ये अपना गाना था तो उसमें तो नहीं छोड़ना था कुछ. Yeah. So that was the only song that I was fully producing, as arrangements and stuff goes. So Hmm. yeah, इस तरह था. वेरी नाइस. तो शेरी भाई, मतलब इस सीज़न का, बिकॉज पुराने भी सीजन्स रहे हैं, तो इस सीज़न का कोई मतलब ख़ास एक जनरल होता है ना, क्रिएटिव प्रोसेस होता है, एक वर्क फ्लो सा. तो कैन यू बता सकते हैं उसके बारे में, कि इंसाइट दे सकते हैं कि इस सीज़न में क्या एक जनरल वर्क फ्लो था सबका, किस तरह अ सॉन्ग वाज मेड. लाइक पहले तो कोलेबोरेशंस ऑब्वियसली करनी थी, लाइक जो आर्टिस्ट लिस्ट बनाते हैं ऑल दैट. तो कैन यू टेल अस अबाउट दैट? Yeah, sure. So step one was the think tank. Um, पांच छह बंदे. I remember COVID उस वक्त आ जा रहा था, तो we were remotely having these meetings like this. और uh, उसका मकसद यही था कि we had to figure out interesting artists that are working here. Because goal jo day one se the vision that Zulfi bhai had was it has to be something that's representing Pakistan fully, which means कि जो
पाकिस्तान के अंदर इंडी आर्टिस्ट या मे बी मॉडर्न म्यूजिशियन, मे बी इवन एन इलेक्ट्रॉनिक person, if he's doing music in Pakistan, he's Pakistani, right? भले वो बाहर का म्यूजिक हो, it's happening in Pakistan. So the idea was to, you know, give this snapshot of music that's going on in Pakistan. तो नए आर्टिस्ट के अंदर बहुत सारे हैं, because currently इस वक्त नए आर्टिस्ट सबसे ज्यादा एक्टिव है in ऑफ terms of कोर्स making music. हमारा, सॉरी टू कट यू, बट मैंने जो नोटिस किया है, हमारा इंडी सीन ड्यूरिंग द कोविड बहुत टाइम इट ज्यादा. हैज़ लाइक इतना ज़्यादा हो गया. Yeah, it has exploded after या COVID. So बहुत सारे नए आर्टिस्ट, you know, pool बना आर्टिस्ट का. So pool बन गया. Then figuring out interesting collaborations, not just pairing them, but to figure out a narrative कि दो लोग अगर हैं साथ तो वो क्यों हैं? Why should they be together? How will they help each other in being in the collaboration? So इस तरह बड़ी बहुत सारे factors थे. So ये constant एक battle होती थी. ये जो meetings होती थी, इसके अंदर बहुत सारे लोग आते जाते थे. You know, list. This was this ever changing list जो कि बस बनती रहती थी. उसमें से कुछ, you know, जैसे पढ़े थे जो सर्टेन थे कि हाँ ये तो जबरदस्त आइडियाज हैं, कुछ के बारे में लोग कंफ्यूज होते थे, यू नो, वी यूज्ड टू डिस्कस. जब वो हो जाता था, फिर वी यूज्ड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द सॉन्ग. लेट्स से कोई भी एक गाना जब डिसाइड हो जाता था कि अच्छा इसका गाना हो रहा है, because this season was all original, so ये बहुत हुआ है कि बहुत से लोग multiple demos पे काम कर रहे थे for this process. Used to send Zulfi a lot of music. In our case, that also happened. मतलब इसी तरह ही के हमने बहुत सारे डेमोस भेजे, उसमें से कुछ पे काम किया, कुछ पॉइंट तक गया, नहीं हुआ, स्क्रैप किया, नया डेमो, इस तरह करके बहुत सारे गाने. जब ये हो जाता था तो अरेंजमेंट पोर्शन काफी हद तक इस तरह बन जाता था while the songs were being demoed. And by arrangement I mean कि एक डायरेक्शन गाने की समझ आ जाती थी और एक समझे एक ब्लूप्रिंट बन जाता था. और आफ्टर दैट फिर जैम होते थे उस गाने पे. We used to think of musicians के कौन सा गाना में कौन सा musician सूट करेगा. There was no house band obviously, so we had these interesting amazing musicians जिनको हम हैंड पिक कर सकते थे for any song. So बड़ा एक मजे का एक प्रोसेस था. It And was very obviously jams के different बाद फिर from the previous seasons. I had noticed कि मतलब nothing, क्या कहेंगे, nothing bitter about someone, but मैं वही देख रहा था कि काफ़ी सालों से मतलब वही चेहरे मैं देख रहा था in the house band, and all of a sudden it was like, क्या कहेंगे, चेरी पिक करके, हाँ ये इस गाने के लिए बेस्ट होगा म्यूजिशियन, इधर ये आना चाहिए. सो इट फेल्ट वेरी फ्रेश एंड गुड एज वेल टू मी पर्सनली. या आई थिंक एक नई डायमेंशन आ जाती है. कोई एक भी म्यूजिशियन आप किसी टीम में से निकाल के लाते हो ना, तो वो एक अपना एक यू नो ही हैज दिस पैलेट ऑफ इंटरेस्टिंग आइडियाज. तो इस दफा ये बड़ा मजे का था कि हर दफा जैम एक नई डायमेंशन में होती थी, बिकॉज गाने भी सारे अलग थे. तो हर दफा एक नया मूड होता था जैम का. And obviously this was a new way of working for us as well, because even previously when we used to work in basement, हम ये process नहीं करते थे हम लोग. Yes, we used to work out spontaneously at the jam session. So वो ये उसमें हम ये होता था कि गाना का हमें कुछ पता होता था और हम फिर बैठ के we used to figure out portions. ऐसे intro, अच्छा intro हो गया, मूविंग ऑन टू वर्स, इस तरह करके पूरा गाना स्ट्रक्चर होता था. बट इस दफा इस तरह नहीं हुआ. मतलब बहुत थोड़े पोर्शंस में इस तरह हुआ है. मतलब यू आर सेइंग कि इट वाज अ बिट डिफरेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम बेसमेंट. यस, कंप्लीटली डिफरेंट. ओके, कंप्लीटली डिफरेंट, नॉट अ बिट. या ओके. तो फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इफ यू वुड कंपेयर इट विद द बेसमेंट और कोक स्टूडियो, तो किसका बेटर था, किसका, इस तरह करके कुछ अगर रेटिंग आप करना चाहें, कुछ भी, एनीथिंग दैट डिफाइंस योर narrative about both platforms. For me, obviously I cannot rate both of these practices, because ये दोनों practices हम करते हैं. Even as a band,
बेसमेंट वाली प्रैक्टिस से भी हमने गाने बनाए हैं, और जो अभी हुआ है जिस तरह, उस तरह भी हमने गाने बनाए बहुत सारे. So हम्म. for us, it wasn't a new dimension, but it depends कि आप किस तरह गाना की अप्रोच ले रहे हो. हम्म. Like कोविड के दिनों में ये जो अप्रोच अभी ली है for कोक was ideal, कि हम घर बैठ के we used to figure out ideas, डेमो किया, भेजा, दूसरे बंदे ने रिकॉर्ड किया उसमें, इस तरह करके the structure comes along. हम्म. बट कभी कभार कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कि मांग रहे होते हैं कि एक रिहर्सल हो, प्रॉपर बैंड रिहर्सल हो, जिससे वो फिर आगे बात बढ़ती है. So yeah, for me, both of these processes are fine. I mean, I'm Okay. familiar with both of them. But as a producer, मुझे the process with that happened this season in season 14 was very nourishing. I mean, to see these new producers, the way they work, their palette, the way they're approaching sounds, मेरे लिए बड़ा एक learning experience था from from that perspective. वेरी नाइस. ओके. तो अब क्रिएटिव प्रोसेस तो बड़ा मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा है कि मतलब एक मिनट, मेरी आई गेस आवाज़ कम हो गई है या. तो क्रिएटिव प्रोसेस मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है सीज़न का, कि मतलब डायनामिक था बहुत, मुझे जो फील हो रहा है आपकी बातों से भी, एंड थ्रू द सॉन्ग्स और जिनके BTS थे, इट वाज वेरी डायनामिक इन द वे के जूम राइटिंग सेशंस भी हो रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम जैम्स भी इन पर्सन हो रहे हैं, एंड in the BTS I saw a writing session of some song in person as well. तो बड़ा मतलब डायनामिक, हर तरह का कुछ ऐड हो रहा है उसके अंदर एलिमेंट. तो दैट वाज न्यू फ्रॉम कोक स्टूडियो इन 14 Yeah. years. ठीक. तो अच्छा, नैरेटिव वो तो आपने वैसे बता दिया कि व्हाट वाज द नैरेटिव ऑफ दिस सीजन, बट इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स तो आप वो भी कर सकते हैं. Yeah, I think Geetha, the snapshot of representing our music that's happening currently. That was the main aim, and obviously doing original music. उससे हट नहीं सकते थे. Finding unique artists जो कि जिनकी unique uh, creative value and addition to the songs and stuff. So main aim यही था. वेरी नाइस. तो अच्छा, इसमें से ना एक क्वेश्चन अराइज हुआ है मेरे जहन में कि मेरा एक एक पॉडकास्ट है, लाइक द सेकंड लास्ट वन आई थिंक, एंड इट वाज ऑन अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कोक स्टूडियो. एंड उसमें मैंने मतलब ये पॉइंट आउट की थी बात कि ओरिजिनल म्यूज़िक का ना काफ़ी वैक्यूम मुझे फील हुआ था इन द मेन स्ट्रीम वर्ल्ड के, मतलब कोक. और उसका मैंने कहा था कि कोक स्टूडियो हैज़ ऑलवेज डन जो उनके गाने मतलब ऊपर गए हैं, दैट वर बेसिकली मोस्टली कवर्स. तो वो मुझे होता था कि यार ओरिजिनल म्यूज़िक नहीं आ रहा, इफ़ ओरिजिनल म्यूज़िक नहीं आ रहा हाउ विल वी गेट. फॉर सपोज मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा, बट पीपल लाइक न्यू न्यू नूर जहाँ और समथिंग, जिन्होंने ओरिजिनल म्यूज़िक ऐसा दिया पाकिस्तान को जो आज भी सराहा जाता है. तो Yeah. व्हाट आई थिंक आप भी क्योंकि कराकरम से एंड दे यू डू ओरिजिनल म्यूज़िक, तो आप तो जानते हैं ओरिजिनल म्यूज़िक की इम्पोर्टेंस. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था. तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? Yeah, but I think ये चीज हमने खुद भी एक्सपीरियंस की थी कि इवन इन बेसमेंट जब भी कोई कवर सॉन्ग आता था, यूज्ड टू गेट much larger view pool than a normal original song, क्योंकि हमारे लोग बड़े मुश्किल से एक नई चीज को एक्सेप्ट करते हैं. बट times are changing. I mean, people are accepting new, songs, new arrangements, new approaches. So I think it was the right time to do such thing here. और पाकिस्तान को जरूरत भी थी for to have original songs. I mean, बिल्कुल. original songs भी आपको आगे की फिर एक dimension दिखाते हैं. When you अगर आप if you keep going back towards the old songs, yes, it's there's no harm in it. You can do it. I mean, बहुत से लोगों को पिछला फॉर्मेट बहुत पसंद था, अभी भी होगा आई एम श्योर. बट वही बात है कि इट वाज हैपनिंग फॉर लाइक 10 years. सो वो एक पॉइंट आ चुका था कि इट वाज द आइडिया वाज गेटिंग एग्जॉस्टेड. और
it needed a fresh outlook, needed a fresh change. uh, so yeah, दोनों में से सही गलत कुछ नहीं है, preferences हैं. Music is a Of vastly course. subjective thing. You cannot compare any music or art form from each other. There is no point of comparing. ये तो बात है यार. मैं सबको बोलता रहता हूँ, ये बहुत लोगों से मेरी बात होती है इस बारे में कि आपको ये गाना अच्छा लगा बुरा लगा. आई ऑलवेज से कि इट्स माय प्रेफरेंस. इफ यू लाइक इट, इट्स नॉट मतलब कंपल्शन फॉर मी कि मुझे भी अच्छा लगेगा या मुझे अच्छा लगता है आपको अच्छा. सो इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग. नहीं अच्छा लगता तो छोड़ दें. सो बड़ी बेसिक सी चीज है. बट प्रॉब्लम ये कि हम लोग क्योंकि हमारे यहाँ टीवी शोज, न्यूज शोज सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, तो वो जो एंकर्स के और जो झगड़े, पॉलिटिशियंस के झगड़े, वो घूम फिर के हर फील्ड के अंदर आ चुकी है. वो एक मेंटालिटी कि बिल्कुल. ये टीम है, इस टीम का ऐसे फट रहा है, ये सिंगर्स हैं, सिंगर्स कैसे फॉरन दे बैटल देम आउट. वो नहीं होना चाहिए. आई थिंक आर्ट है, आर्ट इज आर्ट. ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंग. इट कैन नॉट बी नेगेटिव. शेरी भाई, आई थिंक यूर द फर्स्ट पर्सन जिससे मैंने मतलब ये सुना है. लाइक मैं भी यही कहता हूँ कि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए. आर्ट आर्ट का कोई कंपैरिजन नहीं है. अगर किसी ने कोई एटोनल सॉन्ग भी बना दिया है तो वो इसी तरह जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है. ठीक है, किसी किसी को या समझ या आएगा, किसी किसी को नहीं आएगा समझ. तो हाँ. आई और हाईली सपोर्ट यू ऑन दिस. बिल्कुल सपोर्ट है मेरी या मैन, आर्ट आई को. मीन, और एक और चीज, बहुत सारे नए आर्टिस्ट भी डिसहार्ट होते हैं विद द फैक्ट के दे डोंट गेट इनफ engagement और इनफ व्यूज, जो भी एक्स वाई, बिकॉज आजकल तो यही है ना, व्यूज है, राइट? व्यूज मिल गए तो सेट है लाइफ. हम्म. दिस शुडंट दिस शुडंट मैटर. व्हाई आई से दैट? बिकॉज हर गाने की एक एक्सेप्टेबल परसेंटेज होती है. बाय दैट आई मीन के कुछ गाने होते हैं जो कि आप सुनते ही आप उसको 50 दफा सुन सकते हो. कुछ गाने हम्म. होते हैं जो कि थोड़े हैवियर होते हैं, आप उसको एक टाइम तक सुनोगे, मे बी डाउन द लेन यू लिसन टू देम मोर. इस तरह करके हर गाने की अपनी एक सर्टेन ग्रोथ होती है. हम्म. कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि हिट गाना आ जाएगा तो बस ये चीजें करनी है एंड यू विल गेट व्यूज. इस तरह नहीं होता. अब एंड बिल्कुल. आई सी पीपल बाइंग व्यूज, आई सी पीपल स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन गेटिंग दोज व्यूज. इट्स पॉइंटलेस. हर आर्ट फॉर्म की फैन बेस होती है, हर आर्ट फॉर्म के लिसनर्स मौजूद हैं. परसेंट कम ज्यादा होते हैं बट डजेंट मैटर. इट शुड सेटिस्फाई यू. वट एवर यू डू यू हैव. अगर दो लिसनर्स भी हैं आपके, your job is to entertain them. That's it. You shouldn't be worrying about the fact कि और लोग आए हैं. म्यूजिक बस अपना करता है ना वो. टाइम के साथ साथ बिल्कुल. आपकी बन जाती है फॉलोइंग. वेरी नाइस. सुन लो यार, सुन लो. काफ़ी लोग यानी हैं वो कहते हैं यार हमारे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे और ये तो वो, इंक्लूडिंग मी एज वेल. मैं भी कभी कभार इस तरह करता हूँ. बट आई आई थिंक जब मुझे कोई गाना अच्छा नहीं लग रहा होता जो मैं बनाता हूँ, तो आई आई से कि ओके, शायद ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा लेकिन शायद किसी और को अच्छा लग जाए. तो इट डजेंट मैटर टू. मेरा काम है ये चीज़ डिलीवर करना. ठीक है, ऑडियंस का काम है उसको क्रिटिसाइज़ करना और ना या ना क्रिटिसाइज़ करना. या आई थिंक यू शुड जस्ट बी कंसिस्टेंट. आप बस गाने निकालते रहो. हर गाने हम्म. की फॉलोइंग बनेगी, हर गाने को लोग अच्छा बुरा कहेंगे. पॉइंट ये है कि बस यू हैव टू कीप देम कमिंग. बिल्कुल. बिल्कुल ऐसा ही है. तो ये अब दो लोगों ने कह दिया, मैंने भी कह दिया. ठीक है, और शहरी खटक भाई ने भी कह दिया. अब प्लीज़ निकालना शुरू कर दो गाने. ठीक है. अच्छा, अब ये ज़रा बड़ा छोटा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, छोटा सा, लेकिन ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि कोक स्टूडियो डब्ड होता है, अक्सर लोग कहते हैं नहीं लाइव होता है. तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रीवियस सीजन्स. ये वाला डब्ड था या लाइव था? मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, लाइव और डब का फर्क क्या होता है, ताकि ठीक है. लोगों को, कुछ हमारी प्रॉब्लम है कि लोगों को एजुकेशन नहीं है विद द फैक्ट कि हाउ द प्रीवियस सीजंस वर बीइंग रिकॉर्डेड, हाउ दिस सीजन हैज बीन डन, और बाकी भी, हम्म. और बाहर भी कैसे होता है, हाउ व्हाट इज अ लाइव कॉन्सर्ट, लाइव परफॉर्मेंस, व्हाट इज अ म्यूजिक शो लाइव परफॉर्मेंस. बड़ा डिफरेंस है. बेस्ट है. सो पहले प्रीवियस सीजंस में इस तरह होता था. uh, एक जगह सारी चीजें प्लग्ड हैं, दिस इज सेट जहाँ भी रिकॉर्ड हो रहा है.
singers, musicians, sub mic, and everyone is there for performing. They perform like 5 to 6 takes, whole takes. By 5 to 6 takes I mean कि एक गाना शुरू से लेकर एंड तक 5 दफा बजा दिया. हम्म. ठीक है. अब ये हो गया रिकॉर्ड. आपके पास आ गई 5 फुल टेक्स. ना अब होता क्या है, जो मिक्स कर रहा होता है शो, he'll go back, you know, in a studio. He'll make a comp out of it. By comp I mean compilation. कंपाइलेशन ट्रैक्स बनते हैं हर इंस्ट्रूमेंट के. एक किक ड्रम का भी कंपाइलेशन ट्रैक बनेगा, एक स्नेयर ड्रम का भी कंपाइलेशन ट्रैक बनेगा, एक वोकलिस्ट के परफेक्ट टेक्स कंपाइलेशन होंगी, एक आपके पास फाइनल एक गाने की उन 6 टेक्स में से कंपाइलेशन टेक्स एक फाइनल बन जाएगी. ये प्रोसेस होता है. बेसमेंट का भी इसी तरह प्रोसेस था, कोक का भी इस तरह का था, इस सीजन भी यही प्रोसेस था. बट इस सीजन जो थोड़ा चेंज था वो इस वजह से था, 5 टेक 6 टेक्स लिया आपने, फुल टेक्स जैसे आप पहले लेते थे, क्योंकि विजुअल वाज द वेरी वाइटल was playing a very vital element in the whole process. इस वजह से बहुत सी टेक्स ऐसी भी हुई बीच में जिसमें 2-3 लोग बजा रहे थे सिर्फ, बाकी कोई नहीं बजा रहा, तो उनकी एक्स्ट्रा कॉम्स बन गई. सो बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स रिफाइन होती गई विद द फैक्ट बिकॉज दे वर रिकॉर्डेड सेपरेटली, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वीडियो उनकी शूट हो रही है, क्योंकि वीडियो प्लान था पूरा. पहले तो ये था ना, सीजन जो पिछली सीजन तो मैं कहता हूँ वो एक क्रिकेट मैच की तरह शूट होते थे कि आपने 20 कैमरास लगा दिए, सारे म्यूजिशियंस पे एक एक कैमरा लग गया और वो शूट हो गया, उन्होंने कवर कर लिया, एंड में उसको एडिट कर दिया. इस तरह शूट होता था. बेसमेंट भी कुछ पॉइंट तक इस तरह शूट होता था. But this season, क्योंकि हर there were directors involved, they were like set designers involved, so हर एक डायरेक्टर का अपना एक विजन था. And we were हमारी टीम जो I mean जुल्फी भाई, everyone, we knew के सिर्फ music, it's not just a music show. It's like an exhibition of our art, our new ये लोग हैं जो कि they like किसी कोई नहीं लोगों को पता ना, डायरेक्टर्स का, सेट डिजाइनर्स का, ये भी तो एक आर्ट फॉर्म है ना, राइट. कोक स्टूडियो अगर इतना वास्टली लोग देखते हैं तो व्हाई नॉट वी प्रोजेक्ट दीज गाइज थ्रू द शो. सो इस दफा इस वजह से हर किसी का इनपुट इक्वली इम्पोर्टेंट था. इट वाजंट जस्ट म्यूजिक रिकॉर्डिंग, वरना हमारा हम कहते कि जी हमने 5 टेक्स ही बजानी है, इसी में आपने जो शूट करना है कर लें. तो everyone was very flexible enough to know कि अच्छा in the end it's serving the product. So इस वजह से इस सीजन की रिकॉर्डिंग्स पे हम लोग, जुल्फे is like very keen on recording a perfect signal. हम लोग 13 घंटे भी लगा चुके हैं साउंड चेक्स पे और इन चीज़ों पे, वो हम we don't let that go. So इस वजह से इवन इन सीजन 5 मुझे याद है जुल्फे को इतने मैसेज आते, मुझे इतने मैसेज आते थे कि यार ये लाइव हो ही नहीं सकता. मैं कहता हम लोग कहते क्यों नहीं हो सकता. आई मीन प्रॉब्लम ये है ना कि लोगों के दिमाग में लाइव साउंड थोड़ी डिग्रेडेड साउंड रजिस्टर हुई है. लोगों को मतलब उनको यकीन नहीं आता है फैक्ट के कंडेंसर माइक यूज हो रहा है ऑन एवरी इंस्ट्रूमेंट इन द सेट. Yes, challenges थे, बड़े मसले मसाइल हुए, बड़ा पागलपन था for us to figure out कि कैसे करना है, but we did it, man. Every recording that you hear in season 14 is like on set. And it's recorded with condenser mics. Yeah, Okay. एक I think कोई डायनामिक माइक शायद ही यूज हुआ, मेरा नहीं ख्याल कोई डायनामिक माइक यूज हुआ है किसी भी रिकॉर्डिंग में. तो वो You can see that. I mean हर बंदे के पास एक कंडेंसर लगा हुआ है. तो उस मतलब सपोज इफ ड्रम्स आर प्लेइंग तो उसकी जो ब्लीडिंग होती होगी या जो भी मतलब आपस में वो कैसे करते That's होंगे? why we went for an electronic kit this season ना. तो उसकी ब्लीड नहीं होती, वो तो सिर्फ ये आवाज होती है, मतलब लिटरली ताली की आवाज उसकी होती है थोड़ी बहुत. वो तो बस हल्के से हाइज काट दी उसके वहां से. या अगर एंड है भी ऑब्वियसली फिर पोजीशनिंग आ जाती है उसके अंदर कि वेयर आर वी प्लेसिंग द आर्टिस्ट. सो रिजेक्शंस हम फिर आइडियाज लगाते हैं कि अच्छा अगर ड्रमर इधर है सो नल पॉइंट वी फिगर आउट कि अच्छा उसके ऑपोजिट पे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसकी अपनी एसपीएल कम है
एंड यू नो इट्स यूजिंग a condenser, तो उसकी ऑपोजिट साइड होनी चाहिए। इस तरह की बड़ी चीजें फिर जो बेसमेंट की लर्निंग्स थी हमारी, वो यहाँ अप्लाई हुई, यू नो कि किसकी पोजीशनिंग कहाँ होगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दैट्स समथिंग न्यू कि यानी हर चीज़ कंडेंसर माइक से रिकॉर्ड हुई है। दैट्स न्यू फॉर मी या एट लीस्ट। it was crazy. ओके, तो सो फार सो गुड। मुझे तो मतलब ये मैं अब ये इसके बारे में सोचता रहूँगा, इसको रिसर्च करता रहूँगा कि यार ये कैसे हुआ है। हो जाता है यार, देखो एक और चीज है ना, देखें साइंस भी तो चल रही है ना, ऑडियो की साइंस भी साथ साथ चल रही है। हम लोग रुके हुए हैं भले, लेकिन बाहर इंडस्ट्रीज बड़ी बन रही हैं, प्लगइन्स की इंडस्ट्री, माइक की इंडस्ट्री। कोर्स। आपके कंडेंसर माइक अब ऐसे आ गए हैं टाइट पैटर्न्स वाले, जो कि डायनेमिक माइक से बेहतर रिजेक्शन देते हैं। सो रिसर्च की बात है, इफ यू बिल्कुल। डू द करेक्ट रिसर्च एंड यू नो कि किस चीज पे क्या माइक लगना है किस सर्टेन सिनेरियो में, इट वर्क्स। बेहतरीन। इस पे अब रिसर्च मुझे करनी पड़ेगी सर। बिल्कुल एंड बिल्कुल करो। you'll हेल्प मी। जरूर मैम जरूर, जितना मैं कर सकता हूँ। सर आपने ये कह दिया, इसी यही बहुत है। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, हाउ डिड ये दुनिया हैपन? सो मैं पिछले भी मेरा एक इंटरव्यू था, उसमें मैं बात कर रहा था कि व्हेन आई वाज इन द थिंक टैंक, तो होता है ना वो जो आपके बैंड मेंबर्स होते हैं, और उनको जब पता चलता है कि यार अच्छा कोक स्टूडियो हो रहा है, तो जरा दे वो पूछते हैं कि यार क्या सीन है हमारा, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, यू नो इस तरह की सिचुएशन थी। एंड आई वाज लाइक नहीं हो रहा, बिकॉज व्हेन आई वाज इन द थिंक टैंक और जब लिस्ट बन रही थी, we were restricted to do 13 songs, और 13 गाने के हिसाब से आर्टिस्ट इतने लिस्ट बन गई थी कि आई वाज श्योर कि कोई मतलब चांस ही नहीं। देयर वर सो मेनी आर्टिस्ट दैट वी थॉट उनको होना चाहिए। कितने को थे, मतलब सो अप्रोक्सीमेटली कितने होंगे, कोई यार आई आइडिया? थिंक 20-25 तो आर्टिस्ट थे, बीस ओके। पच्चीस थे, नॉट श्योर बट थे, काफी थे। तो बहुत सारी चीजें हुई बीच में, कुछ आर्टिस्ट की पेयरिंग्स नहीं हो पाई, कुछ आर्टिस्ट आ नहीं पाए, इस तरह के बड़े मसले मसाइल हुए, यू नो द मैकेनिक्स, so वो होता रहा। फिर आई रिमेम्बर हम वी वर लाइक 8 to 9 songs in, ideas wise blocked, and हम आखिरी आखिरी मीटिंग्स कर रहे थे थिंक टैंक की। तो ये डिस्कशन फिर आई कि यार, बिकॉज वी वर देन लुकिंग इट एज अ जॉनर स्पेसिफिक लिस्ट कि अच्छा क्या क्या चीजें कवर हो रही है अभी तक, जितने हमने आर्टिस्ट सेलेक्ट किए, जितने भी आइडियाज हैं, उसमें फिर द रॉक एलिमेंट वाज मिसिंग इन द होल लिस्ट, which has been a part of Pakistan's industry for a while. भले वो इस वक्त इतना एक्टिव नहीं है, but it's a major part of Pakistan. ऑफ अगर आप कोर्स। मुझसे पूछें, बैंड कल्चर, रॉक कल्चर has been a chunk in the आदत वाज industry. रॉक। हाँ, so yeah, so तो उससे आप जब अंदाज़ा ये लगा सकते डिस्कशन, हैं। हाँ, सो जब ये डिस्कशन आया टेबल पे, तो उसमें फिर बैंड्स और ये सारे, फिर वो डिस्कशन स्टार्ट हो गई। देन कराकरम का नाम उस लिस्ट के अंदर आ गया। आई वाजंट द वन ऑब्वियसली टू टेक माय नेम आउट इन इट, बट वो एक जर्नली एक आ गया। जुल्फी हाँ, भाई ने कह दिया। and हाँ, मेरे ख्याल है जुल्फे ने भी नहीं कहा था, किसी और ने कहा था, ये भी मुझे याद है। कुछ ओके। 5-6 लोग थे उसके अंदर, मे बी आई थिंक नताशा और अब्दुल्ला, आई डोंट नो, बहुत सारे लोग। खैर, वी फिगर्ड आउट कि यार ये बैंड्स हो सकते हैं और इनको किसी के साथ, तो हो गया। फिर ऑब्वियसली जब डेमो बनाने का प्रोसेस आया, तो वी एक्सपेरिमेंटेड, बैंड ने भी जैम की, एक दो गाने बने, भेजे जुल्फा को, डिडंट वर्क आउट, टू कट इट शॉर्ट, इस तरह करके हमने वी वर मेकिंग डेमोज। तो उसमें से जो एक डेमो बना, वो दैट टर्न आउट टू बी ये दुनिया, और उसका बेसिकली एक स्ट्रक्चर था, एक बीट थी, और दिस स्ट्रिंग सेक्शन जो कि है उसके अंदर, ये दो चीजें थी उसके अंदर। वो जो शुरू में स्ट्रिंग सेक्शन आता है, राइट? या या ओके, वेरी नाइस। तो तो वो मेलोडी थी। अब आइडिया मेरा सिर्फ ये था कि इसी मेलोडी से स्टार्ट होगा, इसी पे कॉरस आ जाएगा पहले ही, विदाउट एनी स्ट्रक्चर, बस कॉरस स्टार्ट में आया,
and it goes into the beat. That was the main idea. तो okay, that's how generally basically ये दुनिया was born. तो Yeah. मतलब how did you choose, मतलब क्या ज़हन में आया कि let's do फारिस शफ़ी and तलहा अंजुम? Yeah, it's a long story. हुआ क्या था कि at first we weren't paired with any of them. We were paired with someone else. Uh, वो that didn't work out. ये दुनिया में के लिए ही कर रहे थे हम उनको, बट वो सिचुएशन नहीं हुई. He was a rap artist, but I don't know if I can name them or not. I'm still not sure. अभी last podcast में मैं बात कर रहा था किसी से, so I didn't name them because I'm not sure if No I problem, no should or problem. not. But yeah, Yeah. so खैर उनसे उनके साथ नहीं हुआ. We were stuck because इस point पे we were in the shoot process. So हमारे लिए बड़ा एक tricky moment था उस वक्त, यार क्या करना है, because हमारा गाना स्ट्रक्चरली रेडी था, बस आर्टिस्ट हमें नहीं पता था कौन होना है. तो जुल्फिया का आइडिया था कि यार ये दोनों बॉयज अगर आ जाएं, दिस कैन बी द मैसिव सॉन्ग, अ ह्यूज सॉन्ग एंड ह्यूज कोलैबोरेशन इन कोक के, बिकॉज उससे पहले दो दो लोग थे हर गाने में. तो एक जरा एक्सप्लोसिव सा एक कोलैबोरेशन दिमाग में आया इससे. एंड ऑब्वियसली फिर बॉयज आए तो उन्होंने फिर अपनी गेम करी. फारिस शफ़ी इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट रैपर. तो मैं तो मतलब when नहीं, ये मैं चलो ये ऑफ रिकॉर्डिंग बताऊंगा कि मुझे कैसे पता चला था कि फारिस शफ़ी इज़ कमिंग. यू पता चल गया होगा वैसे कैसे अच्छा. पता था. लेकिन या तो I'm not sure, but yeah, ओके मुझे बड़े मैं लोग थे जिनको थोड़ा बहुत आइडिया था लाइनअप का. तो लाइक इट वाज वेरी गुड. Sorry. कोई मसला नहीं. तो ऐसे था मतलब ये दुनिया का सीन वेरी नाइस. तो जनरली जिस तरह आपने बताया, बिकॉज आई नो यू डोंट हैव मच टाइम, तो उससे मुझे ये लग रहा है कि इट वाज अ बिट ऑफ स्ट्रगल, बल्कि बहुत स्ट्रगल थी. ठीक, ऐसे ही है. Yeah, man, it was crazy. It was crazy क्योंकि प्रॉब्लम यही था कि हम लोग, एक तो हमारा पहला सीजन था, राइट. एक प्रेशर अलग. दूसरा ये था कि वी ऑल वर डूइंग लाइक मल्टीपल रोल्स. सो हम लोग अब इस चीज से अंदाजा लगा लें कि आई हैव माय फैमिली इन कराची, राइट. शूट सारा कराची में हुआ. हम 3 महीने के लिए कराची में रुके. मैं 2 दफा घर वालों से जाके मिला हूँ बस इन 3 महीनों में. सो आई वाज सो ब्रो. बिजी विद एवरीथिंग. और उसी बीच में ये गाने का ये प्रोसेस हो गया था. वी हैड टू रिहर्स एज वेल. हमने लाहौर में रिहर्सल कर ली थी, बट कराची में भी होनी थी क्योंकि आर्टिस्ट चेंज हो गए थे. सो बड़ा 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 प्रेशर था. ओह, सो इट्स बीन हेक्टिक, मतलब काफ़ी हेक्टिक रहा. या मैन, या. ओके, तो शेरी भाई आपका मतलब जो आपका क्राफ्ट है उसका मतलब किस तरह आप स्टार्ट करते हैं कुछ सॉन्ग्स, पर्सनली नॉट विद द बैंड, बट व्हाट इज़ योर वर्क फ्लो ऑफ स्टार्टिंग, और उसी में आप कवर कर सकते हैं जो आपका कोक स्टूडियो में रहा है वर्क फ्लो. माय पर्सनल प्रोसेस, दो तीन अप्रोचेस हैं व्हिच आई टेक. डिपेंड्स ऑब्वियसली कि क्या, व्हाट इज इट जो कि मुझे एक्साइट कर रहा है, व्हाट इज द थिंग दैट्स इंस्पायरिंग मी. पहले मैं जब स्टार्टिंग एज से ऐलान जंग से पहले का, द गिटार यूज्ड टू बी माय गो टू इंस्ट्रूमेंट टू फिगर आउट समथिंग न्यू, टू figure a melody out or maybe a guitar part out. तो वो एक मेरी अप्रोच होती है, be it an acoustic guitar or an electric guitar. But after Coke Studio, after ये दुनिया, I've been doing crazy shit with composing new music. I've been using anything, जो भी मुझे साउंड अच्छी लगती है मैं उसको लैपटॉप में और इस तरह. तो एक एक नया अप्रोच है अब मेरी अरेंजमेंट की. और बहुत सारे गाने अभी वी लाइक वर्किंग ऑन सो मेनी सॉन्ग्स दिस मंथ, एंड वी हैव शॉट अ वीडियो एज वेल. वो भी ईद के बाद विल बी रिलीजिंग. सारे गाने बड़े एक नई ओह, डायमेंशन के हैं. तो मतलब इट्स नॉट. ईद के बाद कुछ सरप्राइज मिलने लगे हमें फाइनली. यस यस यस, बिल्कुल क्या बिल्कुल, बात है. बहुत सारे सरप्राइजेस. और बड़े गाने आने वाले. वी लाइक, अभी भी कल वी ट्रैक
एक गाना पूरा ट्रैक हो गया, फिर इस तरह करके वी डन विद लाइक 4 to 5 songs. तो हमारा एम यही है कि रमजान में भी वी लाइक फिगरिंग आउट टाइम्स जिसमें अंदर हम रिहर्स कर रहे हैं और मेकिंग न्यू सॉन्ग्स. तो अप्रोच बड़ी चेंज हुई है, बिकॉज आई थिंक रियलाइजेशन भी हुई है कि एक अप्रोच नहीं हो सकती अरेंज करने की या गाना बनाने की. अब you have this access to such a huge soundscape through the internet, through loops, through samples, आप synths, इतनी चीजें हैं कि आप अपना sound कहाँ से कहाँ ले जा सकते हो, you have no idea. Of course. And हम लोग ये बड़े टाइम से चाह भी रहे थे as a rock band, as a band, कि हम we don't stick to that 5 piece live band. We wanted to explore more territories, we wanted to explore more sounds, and ये दुनिया helped us in breaking बिल्कुल. that box, और उससे बड़ा बड़ा एक नया approach लिए with the new music that we're doing. Yeah, after hearing ये दुनिया, I was like thinking कि यार ये तो थोड़ा Linkin Park वाली trajectory नहीं होगी. Like they started as like hybrid theory and Meteora were so alternative rock and also some elements were metal. और उसके बाद they just Yeah, switch transition into smooth transition हुई उनकी उसमें electronica में, and I was like okay, ये मुझे I think they were the only band who were ahead of their time. of course. उनको बड़ा पता था. और हमारे ट्रांजिशन उससे सिमिलर इसमें से होगी बिकॉज वी वर फीचरिंग रैपर्स इन आवर सॉन्ग. Yeah. सो ऑब्वियसली वो पास पास की अरेंजमेंट्स उसके अंदर आ गई. हमारी सबकी इंस्पिरेशन है लिंकन पार्क, वो कहीं ना कहीं से आ जाती है. So दैट्स व्हाई आई थिंक इट फील्स मोर. Lincoln Park is my life as well. या सही. तो feels good कि मतलब इस तरह का काम भी हो रहा है अब. When I saw your show, I think LMM20 was your first show as a band, right? या Yeah, when I saw like dual guitar solos चल रहे हैं कल नहीं में and all that, मैंने कहा okay, यार ये मैं चाह रहा था और हो गया, thank God हो गया. and and the जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि okay मेरा दोस्त ही उसमें प्ले कर रहा है and अनान, तो I was like okay, ये अच्छी बात है, ये और भी अच्छी बात है. तो बाकी मैं इंस्टाग्राम से ले रहा हूँ. मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है शेरी भाई से तो कर लें. तो अब्राहम स्टीफन मेरे बहुत अच्छे दोस्त यूनिवर्सिटी में, ही सेड कि इफ़ यू एवर वांटेड टू ऐड अ रैपर इन द बैंड, हु वुड इट बी? टफ. ऑब्वियसली डिपेंड्स कि रैपर कौन है, बट अगर एग्जिस्टिंग पूल में से किसी को लेना हो इन अ बैंड, I think Faris would be an amazing fit in our band because his attitude and the way we gelled, and बड़ा अच्छा दोस्त है. So I think उससे एक बड़ी मजे की केमिस्ट्री बनेगी. If he's in the band, it'll be madness. प्लीज़ डू इट, प्लीज़ डू इट. Okay, the other question is Abraham साहब का ही है कि what is the inspiration behind your lyrics? Very good question. um, my approach with lyrics is very क्या कहेंगे इसको, एक unconventional way to write. When I write, it's not about poetry, it's not something जो कि has to rhyme. It's something जो कि has to mean something. कोई भी मेरी अप्रोच ये होती है कि it's relatable, not the words, the topic that's been talked about. That should be something that hits someone or helps someone. बस मेरी अप्रोच होती है. आपके गानों से किसी को क्लोजर मिल जाए, आपके गाने से किसी को सुकून मिले, या एट द सेम टाइम एनर्जी मिले. सो इट हैज टू डू समथिंग इमोशनली. दैट्स द मेन अप्रोच. ओके, मैंने बड़ी मतलब आपने अच्छी बात की और इससे मुझे याद है कि ये दुनिया के जो लिरिक्स थे ना, इट रिमाइंडेड मी ऑफ ऑल्टर ब्रिजेस AB3 एल्बम. लाइक मुझे इंस्पिरेशन लिरिक्स में नज़र आ रही थी कि आई वाज लाइक दिस इज़ सो रिलेटेबल
स्टफ मैं शिट बोलने लगा था. दिस इज सो रिलेटेबल स्टफ. तो मतलब क्या ऐसा हो गया था कि ये दुनिया रुकती है कहाँ? It wasn't my idea. It wasn't. ये दुनिया का concept जो था वो I've discussed this in previous interviews as well. Uh, Lyrically, Adnan Dhul was part of the process for writing the Oh. lyrics from my perspective. And obviously, we sat down together to figure it out. But mainly, it was him to write those lines. And point यही था कि we were stuck इन फिगरिंग आउट कि क्या लाइन होनी चाहिए. एंड हम थोड़ी ब्रेक के लिए बाहर गए. जुल्फे के स्टूडियो में ही थे तो हम बाहर थोड़ी सी ब्रेक लिए तो ही केम अप विद दीज लाइंस कि यार वी आर लाइक एट इट, वी आर डूइंग सो मच बट दुनिया नहीं रुक रही. हम कुछ भी कर रहे हैं, डजंट मैटर, दुनिया नहीं रुक रही. तो वहां से द कॉन्सेप्ट स्टेम्ड. एंड ऑब्वियसली बाकी लाइन he came up with those lines, and I think they were spot on with what the music was saying, with what we I mean it's easily relatable कि हम ये बात कर सकते हैं as a band. And that was amazing. That was something that it was Thank you, Deep so well Conversations. connected. Sorry. Okay, thank you, Deep Conversations. Yeah, बिल्कुल. So Very वही nice. बात है कि अच्छी बात है कि लोग को लगता है कि ये हमने लिखा है, राइट? ऑल्दो नहीं लिखा, बट it's so tailored to what we as a band represent that it's perfect, for us to say those lines. Even for me to say those lines, I can mean it, man. I can mean every word of it. Yeah. लाइक आई वाज लाइक यार इतना रिलेटेबल क्या शहरी भाई मेरे से कुछ पूछ के गए थे ख्वाब में क्या हुआ है? तो सिमिलर थिंग आई नोटिस इन एलान जंग एज वेल. लाइक अलविदा वाज लाइक आई वाज लाइक यार ये क्या है ब्रो? लाइक दिस इज सो मतलब वो क्या कहेंगे, बड़ी दुखी चीज़ है यार ये तो. हाँ. लाइक मैं एक ही गो में एल्बम सुनी है, उस गाने पे आई फेल्ट अ बिट वेरी ग्लूमी एंड हैवी. तो Yeah. उसका भी बता दें थोड़ा सा फिर, अलविदा का भी मतलब क्या है इतना मतलब. उसका भी प्रोसेस था. कोविड का टाइम था, आई थिंक. एंड there's this new way of writing that I've discovered. वो ये कि I put myself into situations that has never happened. ओके. Alvida is one of those situations. It comes from that place where I mean, I thought of something that didn't happen, but I thought it so many times. I put myself in that situation so many times that I had to write something about it. So ब्रो. वो पूरा गाना उसी पे है. It's something that isn't happening or that hasn't happened, but I've written it. Well, I mean, thank you for Alvida, but that's such a dangerous thing to do. I mean, yeah. Yeah. I mean, I know, I know, but शुक्र है. People like go You know, like crazy when they think about stuff like that. But thank you for that. Artist को yeah. crazy होना I know, चाहिए. I know. हैं? तो शेरी भाई, एक जो क्वेश्चन है ना वो हर मेहमान से करता हूँ मैं, एंड इट इज़ व्हाट इज़ म्यूज़िक टू शेरी खटक? Ah, I think music is uh, क्या कहेंगे यार. It's इतनी सारी बातें आ रही हैं दिमाग में. I'm not sure कि मैं कौन सी बात कहूँ, but I think it's a representation of uh, a very evolved society, a very nicely uh, positive society. जितनी सोसाइटीज में म्यूजिक अप्रिशिएट किया जाता है वो खुश रहते हैं लोग. सो टू पुट इट इनटू सिंपल वर्ड्स वो यही है कि म्यूजिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एवरीवन्स लाइफ. बहुत से लोगों को रियलाइज नहीं होता, बट है, कल्चर में भी है. और इवन द वे people live, music has a vast role in it. Positive रहना, it's and for me personally, it's very dear to me. It's my life, so I cannot, you know,
फिगर अ डे आउट जिसके अंदर मैंने म्यूजिक के साथ सुना ना हो या कुछ बजाया ना, म्यूजिक रिलेटेड कुछ ना किया हो। ये जो आपने बात की ना कि मतलब इट्स जो कल्चर में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो वो तो मुझे भी मतलब मैं ये कहता हूँ कि कल अगर म्यूज़िक ना हो, लाइक कोई मुझे कहना यार क्या म्यूज़िक कर रहे हो, तो आई से कि इमेजिन अ लाइफ विदाउट साउंड। आंखें बंद करो या और इमेजिन अ लाइफ विदाउट साउंड। मैंने कही जो अगर या जो हमें शोर लग भी रहा है, इट्स समथिंग विच एड्स एस्थेटिक टू आवर ईयर्स, just like that car horn in the background and my parrot या speaking. म्यूजिक Yeah, that's music. एवरीवेयर। Yeah, like my parrot is speaking continuously in the background. It's adding aesthetic to this podcast. सही है। Yeah, so इस तरह ही मतलब साउंड तो है ही एस्थेटिक का नाम। अगर देखा जाए कान के लिहाज से, अगर कान की आंखें होती तो वो साउंड को देखता, या ऐसे ही। बिल्कुल। तो इन द एंड Sherry भाई, आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच, लाइक यू हेल्प मी विद दिस, यू नो, द प्रोजेक्ट आई एम वर्किंग ऑन। और एंड पे एक चीज़ होती है कि आपने सजेशन देनी होती है, मतलब कोई से भी 3 गाने या एल्बम से कुछ भी आप बता सकते हैं जो कि लोग सुने एंड मतलब अपने म्यूज़िक सेंस को, अपनी क्रिएटिव सेंस को बेहतर कर सकें, वैसे ही चिल कर सकें। ठीक है, या कोई से मैन, भी। थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई मीन इट वाज अमेजिंग, मजा आया। या अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। या एंड music wise, I've been listening to a lot of music these days, but the one that got me these days was Grey Days. Have you heard Grey Days? Grade is no, I haven't. So is it's basically a band, Linkin Park का vocalist Chester था उसका पहला band था, ठीक है। Okay. Now interesting story about that band is कि they recorded an album which didn't released, और वो एल्बम वो बैंड पे टूट गया, लिंकन पार्क हो गया, आई डोंट नो व्हाटएवर हैपेंड, खत्म हो गया बैंड। फिर अभी आफ्टर हिज डेथ this band reunited and they found these recorded tapes of Chester's vocals uh, in the studio or in the garage, and they re-recorded the whole album and they released it. वो जरूर सुनना यार, it's something that will move you, it's something that will destroy you, I mean I it's thinking need के यार वो बंदा उस वक्त इस तरह गा रहा था, उसका ये टैलेंट था, it blew me away. I need to listen to that. Like Chester You though, have to, man, it's amazing. मतलब Chester of the was so was my life, bro. Like Yeah बचपन man, बचपन का जो हीरो है ना म्यूजिक में, it was Chester for yeah, me. मेरा बिल्कुल तो yeah, I will listen। और कुछ ग्रेड डेज हो गया और बिल्कुल। I I would say Bring Me the Horizon are one of those bands जो कि बड़ा हम्म अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं आजकल, वो भी जरूर do check them out, they're amazing. Architects, heavier side, but हम्म this singer is like nuts. It's मैंने obviously Chester B used to scream, but the Sam Carter, the singer from Architect, सो his आर्किटेक्ट technique तो is something that I haven't seen any singer pull off. The हम्म notes he hits, it's out of this world. I mean, पता नहीं हम्म कैसे गाता है. So do check that out. हम्म और आखिर में ये 2 और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हाँ वो ये please. हैं कि मैं ये मतलब ये मेरा 2-3 साल से आपसे यही सवाल है, ठीक है, ऑन योर इंस्टा लाइव भी, ठीक है, ऑन Hmm. योर जब हम LMM पे मिले थे तब भी, और पबजी पे भी जब खेलते होते थे ठीक कोविड है. से पहले। वो ये था कि हाउ टू हाँ. स्क्रीम। Uh, yeah, uh, to be honest, I'm still figuring out. I'm still figuring out a perfect technique. जिसमें I don't exhaust myself. But recently, COVID के time पे ही I took these classes from an Italian coach जो कि वो भी heavy singing करता है. He basically has a Linkin Park cover band in Italy. ओह ओके, और वो नाइस। लोग टूर करते हैं, they sing all the Linkin Park songs and he sings them amazingly. So मैंने वहां से उसको देखा तो I was like, उसकी post आई हुई थी कि I am giving out vocal classes for vocal distortion. So मैंने उससे
just to check myself कि if I'm doing it the right way or the wrong way, or is it fine. तो उस क्लास के थ्रू मुझे एक दो रियलाइजेशंस हुई कि it's not about volume, the scream. हमारे होता क्या है, when we scream we think of high volume, but the most uh, perfect way of screaming is to have a scream जिसकी volume इतनी ना हो, so that it doesn't stress your throat. uh, जो दूसरी चीज जो मुझे समझ आई वो ये था कि नोट के साथ स्क्रीम करना is because in our songwriting style I have to sing melodies while screaming, the same way Chester used to do. It's not just a scream, they're notes, so it has to be melodic. तो उसके लिए there was this technique जो कि उसने मुझे बेहतर बताई. I was doing it previously but I was just doing hit and miss type, you know. कभी हो जाती थी कभी नहीं होती थी, but उससे मुझे realization हुई है कि how to, you know, figure out the way to introduce distortion into normal notes. तो होता क्या है कि you sing the note from here and you add distortion through your nasal cavity. तो आप you can, you know, use it in, you know, in your favor to, you know, less force. तो मतलब जो एक मतलब मैंने अक्सर देखा जो स्क्रीमिंग करते हैं, जो हैवी सिंगिंग, उनकी एक खास करके बनती है एक शक्ल, वो इसलिए तो Yeah, नहीं है yeah. You निजल have की to. वजह से? Yeah, it's because of the nasal. Because nasal जब आप करते हैं तो you have to get it, you know, elongated now to add that distortion. Like for example, like if I'm singing a note, अगर मैं एक normal note गा रहा हूँ, like अभी एक normal note है, it doesn't have distortion. अब मैं इसी में distortion add करूँगा तो so you know it's I'm मैं speaking voice में I'm adding distortion. So that's a little technique जो कि आपको time के साथ साथ you know figure out कि कैसे transition करना है इसके अंदर. बेहतरीन बेहतरीन. तो शरी भाई, थैंक यू सो मच ये भी बताने के लिए, ठीक है, सब कुछ मतलब करने के लिए. और यू नो वेन एवर यू फील लाइक यू नो कि करनी है बातचीत या कुछ भी मतलब, तो आप आ सकते हैं, ठीक है. आई एम एवर रेडी जरूर टू मैम, डू अ जरूर. पॉडकास्ट विद यू, ठीक है. और मतलब थैंक यू टू माई ऑडियंस एज वेल कि आज तक मुझे मोटिवेट किया है, ठीक है, सब कुछ करने के लिए. एंड आई फील ऑनर्ड टू हैव शेरी भाई विद मी ऑन दिस पॉडकास्ट, ठीक है, जो कि मैंने एक साल पहले शुरू की. एंड खुदा का शुक्र है कि अभी भी मैं कर रहा हूँ. तो या तो इसी के साथ मैं अब आपसे मांगता हूँ, ऑडियंस को कह रहा हूँ मैं आपसे मांगता हूँ बाय बाय वाली दरख्वास्त, वो आप प्लीज़ कबूल कर लीजिए. ये लें आपके पास आ गई दरख्वास्त ये लें जी.